Good evening, all the participants present out over here. Today's session for public speaking. Crush it. That is your fear. And crush. Be the crush. So let's begin. What exactly it is. Now speak. Oh, hi all. How are you doing? So, do you have glossophobia? Hesitate to come up and hold and speak on the mic facing all? Fear of getting defamed and chilling out the spine. Getting triggered feelings and discomfort. Getting shaky legs and what not. So, time you should not turn back and get connected, for this meeting is going to be a stress buster and myth busters for public speaking and all, right? So, I am your mentor, Tulika Ganguly, now beginning with this session of public speaking skills. Are you ready? So, tie up your shoelaces and be confident. Good evening, ladies and gentlemen, and the young, chirping generation of today. I welcome you all. I'm your mentor, Tulika Ganguly. I hope you all are doing great, staying fit and sharp, right? Moving ahead with your smiling, cheering face. So I would request all the participants to please keep their mics off, and I would earnestly request all of you to please show their faces. I would really love to see your faces. Thank you for all being here today. Today I'm going to share uh, our session, which is specifically meant to deal with public speaking, fear. Public speaking fear. What exactly is this term? Public, we all know public means the crowd, the common mob of people, right? Public we infer as not as animal but as normal human beings, right? So these human beings, what they do, should we be afraid of them because they are as same as us? We are also human being. Should we be afraid of us? क्या आपको खुद से डर लगता है? क्या आप खुद से शर्माते हैं या हेजिटेट करते हैं? क्या आपको खुद से कोई बात कहने में कोई हिचकिचाहट होती है? नहीं ना? तो फिर आप अपने आप से बात करते होंगे जरूर। एक बार जल्दी से जाइए और अपने शीशे के सामने खड़े हो जाइए। जैसे ही आप अपने आप को तैयार होने जाते हैं, तैयार करने जाते हैं, आप क्या कहते हैं खुद से? Oh well, this dress is suiting on me. I'm looking better. Now I am ready. I am ready to face the world. मैं तैयार हूं। तो इस स्टेटमेंट जो आप अपने आप को कहते हैं और आप सुबह नहा धो के ब्रेकफास्ट करके तैयारी से बाहर जाते हैं दुनिया को फेस करने के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप एक यंग गर्ल और बॉय हो जो स्टूडेंट कॉलेज में हो, या फिर अ प्रोफेशनल, राइट? दोज हु आर इवन अ प्रोफेशनल, हर एक इंसान बाहर जाने के लिए तैयार होता है, अपने आप को फील गुड कराता है, राइट? सो व्हेन यू आर फीलिंग गुड, दैट मीन्स यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट योर ओन सेल्फ. You are looking positively about you. So when do you fear? Why do you fear when you are speaking on something in front of a public? Will they eat you up? Why do these kind of traumas come up to an individual? क्यों ये trauma क्यों आता है? ये trauma, ये एक डर, एक phobia क्यों create हुआ है कि नहीं, मैं स्टेज पे खड़े होकर नहीं बोल सकता, मैं 10 लोगों के बीच में नहीं बोल सकता, मुझे यार प्लीज मुझे स्टेज में खड़े होकर बोलने के लिए मत कहना प्लीज, मैं फोन पे बोल दूंगा, मैं रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ, मेरा वीडियो मत लेना प्लीज. Why these kind of trouble, this kind of stress, these kind of uh, difficulty in speaking? Because you have made your mind in that way, or perhaps you might have been hearing things. आपने सुना होगा किसी से कहते हुए, अरे तुम बोल पाओगे? अच्छा ठीक है, कोशिश करके देख लेना,
नहीं तुमसे नहीं होगा, चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो मे बी ऐसे कुछ शब्द, ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपने अपने बचपन में या फिर अपने स्कूल में या फिर अपने कॉलेज में कभी भी सुना होगा बाय चांस या इंटेंशनली। वो आपके दिमाग में जाके घर कर बैठा और बैठ गया बड़े आराम से, बड़े कंफर्ट जोन में अपने दिमाग में जाके बैठा हुआ है वो। पता है क्या? मैं नहीं कर सकता, उसने ऐसा बोला, मैं नहीं कर सकता। तो क्या ये सोच सही है? आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या ये सोच सही है? मुझे नहीं लगता ये सोच सही है। मैं नहीं कर सकता। क्या आप सुबह अपने बिस्तर पे से पैर जमीन पे रख के उठ सकते हैं? क्या आप आंखें खोल के, खिड़की खोल के सामने का नजारा देख सकते हैं? क्या सुबह जब नजारा देखते हैं तब ये कह सकते हैं, आह, फ्रेश मॉर्निंग, आई एम रेडी टू डू वर्क? ये कहते हैं? जब ये आप खुद से कह सकते हैं दैट आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूं, मैं खड़ा हो सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं। So don't you think so that you can do it? And this is the term, this is the only term for your success. This is the secret to fight out any fear on earth. Even the frightest of the fear is darkness. You can even overcome darkness, believe me. Darkness is एक ऐसा अजीब सा फोबिया जो हर 90 से 80% लोगों को है इस दुनिया में। दैट हमें अंधेरे से डर लगता है, इट्स वेरी कॉमन। एक बार एक पल के लिए जरा आंखें बंद करिए, आंखें बंद करके सोचिए कि आपके आसपास क्या है। भगवान का दिया आपके पास आंखें हैं, दृष्टि है कि आप देख सकते हैं जब आप आंखें खोलेंगे। जरा सा सोचिए उन बंदों के बारे में एक पल के लिए जिन्होंने कभी आंखें खोलने के बाद भी उजाला देखा ही नहीं। जस्ट इमेजिन, जैसे मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, जस्ट इमेजिन। तो उन्होंने क्या सुना? क्या उन्होंने ऐसा नहीं सुना है कि अरे ये तो अंधा है, ये तो देख ही नहीं सकता? लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि वो जो अंधे हैं वो भी कोशिश करते हैं छू के, महसूस करके देखते हैं? वो भी देखते हैं माँ कौन है यहां बिंदी से, माँ कौन है इसकी नथ से, माँ कौन है उसकी कान के बाली से, पापा कौन है उसकी मूंछों से, राइट? तो उस बच्चे ने जिसने कभी भी अंधेरे से बाहर निकल के नहीं देखा है, उस बंदे ने कैसे देख लिया अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने घर वालों को, अपने प्रियजनों को, अपने दोस्तों को, इस दुनिया को? जस्ट इमेजिन। तो ये डर हम सब में है, लेकिन जब वो अंधा, जिसे हम अंधा नहीं कह सकते, जो कि अपनी मन की दृष्टि से देखता है, इफ दैट पर्सन कैन सी विद कॉन्फिडेंस एंड कैन फाइट आउट द डार्कनेस इन हिज लाइफ, in his or her life. So by God's grace, we all have been gifted with all the beautiful creation of God, with the sight, with the hearing aid, with our intelligence, with our speech, with our vocal cord, with all our heart. We are confident enough to present ourselves to the world, and that is the only and only thought process one should keep in their mind. Believe me, this is the only way you can fight back anything. So what is public speaking anxiety? जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि अंधेरे से हम सबको डर लगता है, तो अंधेरे से हम कैसे फियर आउट करते हैं? हम जब अंधेरे में लाइट चली जाती है तो हम किस तरह से माचिस और कैंडल ढूंढ लेते हैं अपने कमरे में, क्योंकि हमें पता होता है कि वो कहाँ है, हमें अंदाजा है क्योंकि हमने उसे देखा था। तो उसी तरह से अपनी मन की आंखों को हमेशा खुला रखिए और अपने आप से हमेशा ये कहिए कि आप कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट आर द एंजाइटीज? एंजाइटीज में हमारे अंदर क्या, वो डर क्या है जिसकी वजह से हम ऐसा फील करते हैं? सबसे पहले ये जो वर्ड मैंने इससे पहले के वीडियो में कहा, दैट द टर्म इज ग्लोसोफोबिया। ये ग्लोसोफोबिया है क्या चीज? ग्लोसोफोबिया इन द सेंस इट इज द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, और इन कॉमन वर्ड्स स्टेज फ्राइट। जब हम स्टेज पे खड़े होके या फिर किसी कॉमन पब्लिक एरिया में खड़े होके बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं, हम कॉन्शियस हो जाते हैं और हमें लगता है कि शायद हम बोल ना पाए, हमारी आवाज रुद्ध हो जाती है, बंद हो जाती है। हम बहुत कुछ ज्यादा सोचने लगते हैं, हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि हमारी सोचने की क्रिया ही बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए।
सो क्या इन सब चीजों से हमें ऊपर उठ के नहीं आना चाहिए? तो ये ऊपर हम कैसे उठ सकते हैं? ग्लॉसोफोबिया से हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं? द कॉमन एंजाइटी इन द वर्ल्ड, 80 to 90% ऑफ पीपल, आप अकेले नहीं हैं, 80 to 90% ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। हर एक तीसरा, चौथे में चार लोगों में से हर तीसरा बंदा ये प्रॉब्लम फेस करता है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, कोई नई यूनिक चीज नहीं कि नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगा। अरे ऐसी सिचुएशन तो मेरे साथ भी हुई है काफी बार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार जाऊं या मैं कभी कोशिश ही ना करूं। क्यों? मैं क्यों नहीं कोशिश कर सकती हूँ? क्या मैं एक बात नहीं कर सकती हूँ? क्या मुझे बात करना पसंद नहीं है? Speaking, speaking or talking, you all love to talk, right? You all love to talk, you all love to discuss, you all love to share your views. So we should never come across this feeling that we cannot. So first and foremost, come over the fear of public or crowd. जैसे ही हम क्राउड को देखते हैं, आपको डर लगता है कि आपको उस भीड़ में नहीं जाना चाहिए। आपके पेरेंट्स ने भी सिखाया है कि बच्चों को कि भीड़ में मत जाओ, भीड़ में जाओगे तो खो जाओगे, भीड़ में जाओगे तो तुम अपने आप को ही खो जाओगे। लेकिन उस भीड़ में अगर अपने आप को बनाए रखो, अपने आप पे विश्वास रहे कि हाँ मुझे घर का रास्ता पता है, मैंने अपनी मम्मी पापा को अच्छे से देखा है, मैं उस भीड़ में उन्हें ढूंढ लूंगा। और अगर मैं नहीं भी ढूंढ सकता हूं तो मुझे पता है मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लॉस्ट इन अ क्राउड, वॉट यू डू फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप वहां पे जाके सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड या जो पुलिस तैनात है उनके पास पहुंचते हैं, या फिर जो अनाउंसिंग बूथ है उस अनाउंसिंग बूथ के पास पहुंचते हैं। उस अनाउंसिंग बूथ में जाके सबसे पहले आप अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने घर का पता, कोई भी एक इंडिकेशन जो आपके आसपास है वो वहां पे मौजूद है, उनका नाम, पता और या फिर मोबाइल नंबर अपने फादर का या मदर का जो उस वक्त उपस्थित है, जिनका नंबर आपको याद है, जो आपके साथ तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बताते हैं। तो क्या आपने ये पहली लड़ाई अपनी जीत के लिए नहीं की? बस like this only, you have to come over your fear, you have to find out solution, listen to your conscious, don't listen to others। जो आपके अपने हैं उन्होंने आपको सिखाया है आपको हर संघर्ष में से बाहर निकालने के तरीके को, तो आप उन्हें याद रखें, ना कि आपको जो कमजोर कर रहा है आप उनकी बातों को याद रखें, अपने आप को मायूस करें। फॉर एग्जाम्पल, if in your school time you have been told by your by your peers, your classmates that ये क्या बोलेगा, he cannot speak, let it be, इससे नहीं बोला जाएगा, we will give some other a chance। आप उस वक्त अपने आप को डिप्रेस फील करते हैं, अरे मुझे तो मौका ही नहीं दिया, मैं तो नहीं, मैं मौका कैसे पाऊंगा, इन्होंने तो बोल ही दिया कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता, हाँ शायद मैं नहीं बोल सकता। तो क्या ये सोच सही है? क्या आप सच में बोल नहीं सकते? क्या लंच पीरियड में आप अपने फ्रेंड्स नहीं बनाते? क्या लंच टाइम में आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी हंसी मजाक की बातें नहीं करते हैं? तो बस ऐसे ही छोटे मोटे पॉइंट्स आप हमेशा अपने साथ याद रखें। तो इस नर्वसनेस को, इस एंजाइटी को बाहर निकालने के लिए छोटे छोटे तरीके मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगी। So I hope you all are ready. So tie up your shoelaces, sit up straight, your spine's erect, take a deep breath, release out the negative energies, and with all your clear mind, believe in yourself। मैं आपकी मेंटर आपके भले के लिए ही आज बात करने आई हूं, क्योंकि आज से काफी साल पहले शायद मैं भी इसी सिचुएशन में, इसी स्टेज पे खड़ी थी, नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझसे घर पे कहा जाता था कि मैं अच्छी डांस करती हूँ, ऐसा कहा जाता था, और मुझे भी डांस करना पसंद था। लेकिन जब भी मेरे भाई बहनों की शादी होती थी या घर में कोई फंक्शन होता था और हमसे कहा जाता था कि ठीक है घर के सदस्य, घर के बच्चे जो हैं वो कोई ना कोई एक्टिविटी या कोई प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे, और नाम बुलाया जाता था एक एक करके, तो सबका देखने में बड़ा मजा आता था। जब वो लोग गलती करते तब हंसी भी बहुत आती थी, लेकिन जैसे ही अपना नाम आता था ना, there was a spine chilling feeling, there was a nervousness, there was shaking of leg, there was drying of throat। So these were the feelings which we used to feel whenever our name was being called out in public। At that point of time we used to feel that, oh my god, I hope
I won't be able to perform it. I hope I will not be able to do it. Oh, I forgot all. Oh, I'm nervous. Oh, I just can't do it. But at the same point of time, if you just relax, your name has been called, you get tensed. That's natural. That's very natural. Believe it. Don't worry it. Take a deep breath. Give a bright smile to yourself and be thankful that your name was being called. You are being called, you are being appreciated by the public. They want to see you. So be happy. Take a deep breath, smile to yourself, and stand up. Stretch yourself, have a glass of water, ask for the public to spare you one few minutes. Okay? After that few minutes, come back on the stage, prepare your head. Okay, whatever you're going to perform, you will do it moderately good. Okay, if you're not prepared. And if you're prepared, you just have to nothing worry about. You just have to perform because you are already ready. Correct? Okay. So first and foremost, I'm going to share you a few things which you would understand exactly are these. I hope you all can see the screen. If you all can see the screen, so please kindly punch a thumbs up. वर्चुअल स्क्रीन पे थम्स अप शेयर कर सकते हैं आप. You can, yes, you all can see it. Great, thank you so much. But yes, believe me, मुझे आपकी शक्ल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. Please open your cameras. I would love to see your faces. Okay, please let others also join in. Those who want to share their link. Alright. So, who needs to speak in public? पब्लिक में कौन कौन बोलता है? सब लोग बोलते हैं? हाँ, सभी लोग बोल सकते हैं. बहुत ही कॉमन है पब्लिक में बोलना, है ना? लेकिन आपने किसको देखा है बोलते हुए? पॉलिटिशियंस को? नेता जो हमारे होते हैं, वो भाषण पे भाषण दिए जाते हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए, या मे बी अपने आप को वोट करवाने के लिए, राइट? तो ये पॉलिटिशियंस करते हैं, वो पब्लिक में आके बहुत जोर जोर से नारे गाते हैं और हम ये करेंगे, हम ये होंगे, हम ऐसा करेंगे और हमारे आने से इतना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप सबको ये सब कुछ मिलेगा. तो वो इतना कॉन्फिडेंस गेन करा देते हैं पब्लिक को कि पब्लिक वशीभूत हो जाती है. वशीभूत इन द सेंस अट्रैक्ट हो जाती है उस पब्लिक स्पीकर की तरफ और वो जो जो कहता है उन सारी चीजों को मान लेते हैं. ओके, इसी तरह से इसी प्रकार और कौन कौन हो सकता है पब्लिक स्पीकर? एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो कि अपना बिजनेस आगे प्रमोट कर रहा है, वो जो कि अपने प्रोडक्ट को सबके सामने ला रहा है, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जो कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो आता है, वो आके अपने बारे में बताता है, अपनी कंपनी के बारे में बताता है, अपने लोगों के बारे में बताता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने सर्विसेज के बारे में बताता है. तो ऐसे लोग, उनको, वो भी जो एंटरप्रेन्योर्स है, वो भी आके आप सबको या पब्लिक को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है. तो ऐसे लोग भी पब्लिक स्पीकर्स होते हैं. And of course, the teachers. Who will forget them? Oh my God, teachers are obviously there. They have to speak. उनके लेक्चर के बिना तो ये दुनिया ही अधूरी है. हम अधूरे हैं भाई. नहीं 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 नहीं, डोंट वरी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे हमारे ही टीचर्स थे जिन्होंने हमको बनाया है, ठीक है ना? तो आज मैं टीचर के वे में नहीं आई हूँ आपके पास, मैं आपकी दोस्त बन के ही आई हूँ. नॉट अ टीचर बट जस्ट अ मेंटोर. मेंटोर कौन होता है? जो आपको सही राह दिखाता है, जो आपको गाइड करता है, राइट? सो आई हैव बीन दैट एंड आई लव टू बी दैट, बिकॉज मैंने भी अपने गहराई, अपने अपने चोट से, अपने फेलियर से सीखे हैं, उन डांट से सीखा है जो हमारे टीचर्स ने हमें कभी दिए थे. तो डोंट वरी, दोज फेलियर्स आर नेवर बैड. Those failures are always good to sharpen your skills and learn the best to come back as a winner. So now you feel, when you are being guided by your trainers or your mentors, then you feel that yes, you have that confidence, that you have that it in with you. So the teachers, they are also public speakers.
क्यों? क्योंकि वो अपने एक पूरे पूरे क्लास को पढ़ा रहे हैं, उनके सामने बात कर रहे हैं। अगर एक टीचर नर्वस हो गया या एक टीचर अपने टॉपिक से विमुख हो गया या जो इंफॉर्मेशन उसने अपने दिमाग में भर के आए थे वो इतने सारे क्लास में बच्चों को देख के, स्टूडेंट्स को देख के, स्कॉलर्स को देख के अगर घबरा गया तो वो क्या वो सिखा पाएगा? नो, द टीचर कैन नॉट ट्रेन दैट इंडिविजुअल क्लास या द ह्यूज क्लास. So believe it, the teachers are also a great public speaker. Moving ahead, what should you do? Are you ready? So, what are the elements of talking? सबसे पहले तो हम बात करते हैं तो बात को कोई सुनने वाला होना चाहिए ना. That's a part of communication. You believe that, right? You trust that? That if there is a speaking going on, that means there is an audience to hear you. If the audience is not there, then how can you speak? To whom will you speak? There has to be a two-way communication, right? There has to be a speaker and there has to be an audience before that speaker. Without an audience, the speaker is of no use. अगर यहीं पे मैं एक खाली स्क्रीन के सामने बैठ के बात करती रहूं, what a fool I'm making myself. लेकिन वहीं पर अगर मैं देखूं कि मेरे पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन रहे हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो इंकरेजमेंट शो कर रहे हैं, वो और भी लोगों के साथ आ रहे हैं, then definitely the speaker feels more and more energized, more and more motivated to speak more. This is how we move on. Then वो जो स्पीकर बोल रहा है वो किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर बोल रहा होगा, तो उसे वो कंटेंट पता होना चाहिए कि वो क्या कंटेंट पे बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल टुडेज टॉपिक इज पब्लिक स्पीकिंग. पब्लिक स्पीकिंग का मिथ और फियर क्या है और उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट वाज योर फीलिंग. जब आप स्टेज के ऊपर आते हैं, पब्लिक का सामना करते हैं, अपने ऑडियंस का सामना करते हैं, तो आप व्हाट एग्जैक्टली यू फील. यू और जैसे कि इससे पहले भी मैंने कहा, either your voice goes choked, you feel numb, you feel cold, you are shaking, you are either sweating, your mouth and your throat is dry, you're having some kind of tinkling in your stomach, and then you are also loss of breath, right? So to overcome these problems, you should know the alternate medicine to this. Medicine यानी पिल नहीं खाना है. आपके साथ जो जो हो रहा है उन्हीं को आप बस ओवरकम करिए. Complete loss of voice, dryness of throat, have a sip of water before you start or before you enter the hall. Okay? But before you do all these things, I should tell you one more very interesting thing. कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जा रहे हैं या अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं कि हाँ आपको कल या 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या मे बी आज यहाँ पे इस जगह पर पब्लिक स्पीकिंग करना है या कहीं जगह पे जाके पब्लिक स्पीकिंग करनी है या ऑडियंस को फेस करना है, तो ट्रस्ट मी, यू शुड गो एंड विजिट दैट प्लेस. You should go and visit that place so that you understand the environment, you should understand the scenario, and you should overcome the fear of, just a second, yeah, so that you can overcome the fear of space. जहां पे आप बात कर रहे हैं, बात करने वाले हैं, वहां पे आप जाके उस जगह का नजारा लीजिए, उस जगह को आप जाके देखिए और फिर फील करिए कि what exactly that space is. So go and see that classroom, that hall, that public area जहां पे आप जाके बात करेंगे. फिर अपने आप को वहां पे विजुलाइज करिए, विजुलाइज करें कि आप वहां पे खड़े हैं और वहां पे आप बात कर रहे हैं. देन सी हाउ नाइसली यू आर स्पीकिंग एंड यू आर वन ऑफ द ऑडियंस. आप ही वो ऑडियंस है जो आप अपने आप को देख रहे हैं और आप अपने आप को बहुत बेहतरीन बोलते हुए देख रहे हैं. सो फर्स्ट इम्पैक्ट इन योर ब्रेन. सो दिस इज ऑल brain game. It's all nothing but inside your brain. Your brain is playing with you, so better you play with your brain. So that's the technique. So you should know that time is less and you have to overcome your fear. तो आप एक पूरा इशू नहीं क्रिएट करेंगे अपना और आप अपने आप को तैयार करेंगे. So like this you will move on. Then on the day of the speech, जिस दिन आप बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा,
Take deep breath. So taking a deep breath will actually help you and release your negativity within you. Thereafter, you have to warm up before you're speaking. Warm up मतलब अब जाके एक्सरसाइज करिए, हाँ, बॉक्सिंग करिए, दौड़ के आइए, ऐसा कुछ नहीं. मान लीजिए आपको सुबह 11 बजे या 12 बजे स्पीच देना है या फिर शाम को 5 बजे स्पीच देना है, तो सुबह से आपके पास काफी समय है. आपने सुबह उठे 7 बजे या 8 बजे. I believe early wakers are the successful people on earth. So I presume that earliest and latest could be 7 o'clock. तो मैं टाइम नहीं बता रही हूँ, but I'm just telling you, right? So if you're waking up early, so go and freshen up yourself and then thereafter go for a warm up. Take good fresh air, exercise yourself, release all the negativities, dress up, and then again before your speech, just go and take a quick casual stroke. मतलब आप जाके एक stroll कराइए, walk कराइए, and then you feel much comfortable. Then looking here and there, your brain gets eased off. You are less loaded with your things. Then when you are facing your audience, सबसे पहले know your audience. Know your audience मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस का ग्रुप क्या है, कौन आके आपको सुनने वाला है. ठीक है, चाहे वो 10 लोग हो, चाहे 50 हो, चाहे 1000 हो, डजंट मैटर. जो भी है वो वहां से आपसे कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, कुछ सुनने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आप बोलने वाले हैं. यू आर द स्पीकर. दैट मीन्स यू आर नोइंग व्हाट टू स्पीक. यू हैव द कंटेंट मैटर. आपके पास कंटेंट है, राइट? एंड यू नो द नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक. दे आर नॉट नोइंग, दे आर सिटिंग टू हियर एंड नो इट फ्रॉम यू. या फिर जो भी वो जानते हैं उसको और ब्रश अप करने के लिए वो आ रहे हैं. So that is why know your audience. Your audience is already in a fear because उन्हें नहीं पता आप क्या क्या बताने वाले हैं. So the best point is the core is the speaker. The core is the speaker means you. The speaker is the core, the center of attraction of that event. वो इवेंट जो डिजाइन किया गया है उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? आप है, the speaker. So definitely be happy about that you are the center of attraction. Now the audience is feeling. क्या आपको पता है ऑडियंस क्या फील करता है जब हम पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं? वो हमेशा हमें क्वेश्चन नहीं करते, वो इनफैक्ट खुद को क्वेश्चन करते हैं. आज पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, पता नहीं कैसा दिमाग खराब करेंगे, जैसे कि शायद मैं कर रही हूँ आपका दिमाग खराब, या पता नहीं शायद कुछ ऐड ऑन कर रही हूँ आपके लिए. Okay, so the audience is in this feeling कि पता नहीं आज कुछ नया जानने को मिलेगा या वही कुछ पुराना या फिर कुछ और यूनिक हम समझेंगे या हमारे अंदर की ही कुछ लुप्त चीजें, कुछ खोई हुई चीजें हम खुद को ही सामने देख पाएंगे. So definitely believe it that your audience is more scared and nervous than what you are. So don't be afraid because you have the knowledge of the topic you are going to speak. So believe in yourself. First thing. अपनी जो डर है उसको आपने काबू कर लिया है, तो नाउ यू हैव टू जस्ट थिंक आउट दैट व्हाट कैन ओवरकम दीज थिंग्स, जो कि मैंने पहले भी बताया. सो लेट्स मूव ऑन टू द ओवरकमिंग पॉइंट्स, दैट व्हाट कुड बी द पॉइंट्स व्हिच वी कैन रियली ओवरकम विथ. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड नो हाउ टू ओवरकम आवर फियर. सो बिफोर यू आर गोइंग टू फेस द ऑडियंस, उससे पहले आप क्या करते हो, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपना रिसर्च करते हैं, टॉपिक मटेरियल गैदर करते हैं, उसको लिखते हैं कहीं पर. ठीक है, या मैं कहूंगी कि लिखने की जगह, पूरा ऐसे लिखने की जगह सिर्फ शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स लिखे और उसको तेज अपने आप को सुनाते हुए बोले. क्या आपको वो सुनने में अच्छा लग रहा है? अगर आप सिर्फ रट्टू तोते की तरह बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है. और अगर आप उसी को बहुत अच्छे से समझाते हुए बोल रहे, तो आई बिलीव दैट इज मोर कॉन्फिडेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर व्यूज एंड पीपल विल रियली लाइक इट. एंड रिमेंबर ऑलवेज व्हाई यू आर देयर. आप वहां पे क्यों खड़े हैं? टू एक्सप्लेन पीपल अबाउट योर टॉपिक. तो अपने टॉपिक से विमुख मत होइएगा. देन हैव अ स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट जो मैंने अभी आपसे कहा कि आप लिखते हैं थोड़ा बहुत, तो पॉइंट वाइज लिखेंगे, लेकिन उसे रटिएगा मत. I request and plead all of you, do not memorize or mugify the complete script, because आप जब बोलने वाले होते हैं तो आप एग्जैक्टली सेम नहीं बोलते हैं जो आपने लिखा हुआ होता है. उससे कुछ पॉइंट्स, कुछ वर्ड्स डेफिनेटली इधर उधर होता है. आपके सामने कुछ ऐसे सिनेरियोज आते हैं, कुछ बोलते बोलते आपको कुछ और भी याद आ जाता है उससे रिलेटेड और आप उसे शेयर करना चाहते हैं. सो बेटर डोंट
मग अप योर स्क्रिप्ट, बिकॉज वो आप करेंगे और अगर बाई चांस आप मिस कर जाते हैं कोई लाइन तो वहीं पे आपके हाथ फिर ठंडे हो जाएंगे. So don't mug up your whole script. Just write the points and expand it with your own visualization and your own experiences. Then don't only rely on the technology. Mic भी खराब हो सकता है बॉस, ठीक है, आफ्टर ऑल मशीन है भाई, तो अपनी आवाज बुलंद रखे. आई होप माई वॉइस इज नॉट दैट लाउड कि आपके कान के पर्दे फट रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे माइक नहीं, मैं कंप्यूटर के स्पीकर से बात कर रही हूँ. तो आई होप कि आपको ये सुनने में सूदिंग और कंफर्टेबल भी लग रहा है और सारी बात क्लियरली जा रही है. तो योर वॉइस शुड बी दैट मच लाउड एंड कॉन्फिडेंट दैट पीपल शुड हियर इट प्रॉपरली एंड नॉट ओनली हियर इट, दे लिसन इट. Listening is from here, not only from here. This is the hearing aid. This is the hearing part. We listen it. We get it into our head when we listen carefully. So it should be in that way. Then again, know your audience. Pause and take deep breath. जैसे ही आपको लग रहा है कि आप नर्वस हो रहे हैं, आप शेकीनेस आ रहा है, take deep breath and you feel much better. Believe me, I did that right now. Okay, but yes, I'm not nervous. I'm very happy with you all. Then create a backup slide for the audience's question and focus on the beginning and end. तो जैसे कि मैंने कहा कि focus on the beginning and ending, that is when you are basically knowing what is your problem, you should come over it and you should face it. Facing it, challenging it, how you should always write pointers to yourself that you are facing this problem and how to overcome this problem. Right? So these are few instances where you can really overcome. So I believe this scenario, this event, this point of time which I shared with you all present over here, I hope this might have added something more to your skills. वो जो हेजिटेशन पार्टी में जाकर परफॉर्म करने की, ठीक है, बच्चों को डर लगने की, बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? बच्चों को मोटिवेट करते हैं, अरे जाना जाके डांस करना, अरे जाना. तो वो जो अचानक धक्का मारा जाता है या भेजा जाता है स्टेज पे, इम्प्रॉम्प्चू मतलब अचानक से, तो वो हो सकता है हमें एक सेकंड के लिए ट्रॉमा दे. तो उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? बच्चों को भी बहुत सी साइकोलॉजी के साथ, बेटा देखो कितने अच्छे वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तुम्हें भी तो वो वाला डांस कितना अच्छा आता है ना, तुमने वो घर पे दिखाया था ना, कितना अच्छा डांस किया था, हमने वीडियो लिया था. लाइक दिस यू मेक देम memorize them and relate their encouraging point and make them come up on the stage and perform their best. Then don't forget to encourage them, because encouragement is the only thing which can a person bring the best in themselves. So be yourself, do not copy others. दूसरों को इंस्पिरेशन बनाइए लेकिन दूसरों को कॉपी मत करिए. कॉपी करना will not be good. Be your original self. Be yourself. Believe in yourself. Love yourself and speak your own words. Believe me, when you do this, people start loving you. People start adoring you. People start believing you. इतने बड़े बड़े जो स्पीकर्स थे, फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद रहे हैं, ओबामा रहे, वो स्वामी विवेकानंद ने बहुत आगे चली गई, कोई बात नहीं, ओबामा रहे हैं, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मित्रों वो रहे हैं, ठीक है, और सदगुरु या फिर कोई भी स्पिरिचुअल लीडर्स, when they speak, why do we feel that yes we feel connected? वो हमारे अंदर घुसते जा रहे हैं या हम उनके अंदर घुसते जा रहे हैं, हम एक होते जा रहे हैं, वो वही चीजें कह रहे हैं जो हमारे अंदर है. ऐसा क्यों फील होता है? Because they are speaking the very true self, they are speaking their own words, and वो own words कहीं ना कहीं आपके साथ relate करते हैं. When things starts relating to you, you start believing in it, right? To start believing in yourself, do not depend on others, do not listen on the defensive and offensive words others may have said to you that you cannot do it, you're not able to do it, you cannot perform well. Please forget it. Give it one try. Give it one single try. और पब्लिक को दिखाए ना दिखाए, डर हो या ना हो, एक स्मॉल वीडियो, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, ओके, तो वो स्मार्टफोन को लेके अपनी सेल्फी लेते हुए एक वीडियो करिए और अपने आप से कहिए कि आज मैं खुद को, मैं एक ऑडियंस भी बनूंगा और मैं अपनी रिकॉर्डिंग करके अपने आप को सुनाऊंगा. क्या मैं अच्छा बोल सकता हूं? हाँ मैं अच्छा बोल सकता हूं. मेरी रिकॉर्डिंग कितनी बढ़िया गई है, मेरी सेल्फी कितनी अच्छी आई है, ओ वाओ, आई रियली एम स्मार्ट एंड अ हीरो एज, राइट, हीरो या हीरोइन, राइट. सो
Let's not fear, let's overcome. If you really liked my presentation today, my speech today, I would really love to see your faces and encourage me and motivate me and show me a heart. Is it possible to show me a heart? How many hearts may I see? Okay, there are virtual heart on your reaction button. You can show it. You can give me heart. You can give me like, and you can show me a thumbs up. Oh, thank you so much, Angel. You're really an angel. Oh my God. Thank you so much. All right. So I believe you can come over to any query up to me and leave your comments, and I would love to get back to you, and definitely will bring out more and more these kind of speeches, these kind of interactive workshop for you so that you learn better and you be yourself. Love yourself. Take care of yourself. If you want to share a thought, please open your mic and share your thoughts. We still have 2 minutes left. कोई कुछ बोलना चाहता है फ्रॉम द अमंग्स द ऑडियंस? आपको कैसा लगा? व्हाट इज योर फीलिंग? हैव यू कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम और नॉट? एनीबडी, you're open to speak. Please open your mic and speak. Hello there. We still have 1.5 minutes left. I would really love to see people speaking. Not for me, but for public speaking कि हाँ ये ग्लॉसोफोबिया क्या है, ये ग्लॉसोफोबिया को हम ओवरकम कर सकते हैं कि नहीं, क्या ये इतना डरावना है जितना कि नाम सुनने में लगता है? Yes, dear audience, are you there? Hello? Show me a thumbs up if you are there, if you are hearing me or you are not gone off. Okay, great. It's time to wind up. It was lovely knowing you all. It was lovely addressing you all. And कुछ मैं सिखा पाई अपनी तरफ से, कुछ मैंने जो experience किया वो आपके साथ share कर पाई. It was wonderful being here, being with you all. Take care, all of you. Stay well, stay healthy, keep smiling, love yourself. All right. Take care. Have a nice day. Have a great evening ahead. Bye.